Assalamu alaikum. My name is Umair Javed and I am from HR Consultants, Karachi branch. HR Consultants, let me tell you about them. I mean, it is one of the leading consultancy firms in the last 27 years in Pakistan. And, we have been serving students with transparent information and work. Well, the aim, for me to be in contact with you this time is to let you, I mean, after the situation developed after this COVID 19, it does not mean that everything is finished or stopped. We have been, supporting our students by working full time remotely from our homes. So, you guys, who are determined to go abroad this year, you don't have to worry about that. We are here to work for you. We are doing every bit from our end to support you, and we will fully facilitate you in getting the admission and visa for UK. Well, I'm going to describe you about UK today, and particularly about Cardiff University. But first, let me tell you something about UK. UK, as you all know, has always been the popular destination for international students. I mean, especially this year. Since the announcement of graduate immigration route. Let me tell you, UK में 2011-12 तक post study work permit offer होता था, but it was revoked in 2011-12. Uh, this year, from 2020 onwards, UK गवर्नमेंट ने अपनी ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट जो कि प्रीवियसली पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता था वो स्टार्ट किया है. सर मैं लाइव हूँ, आपने कॉल कर दिया. All right, sorry for the disturbance. Well, I was saying, PSW ऑफर होता था तो 2011-12 तक. दिस ईयर वो ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट के नाम से रीस्टेट किया गया है. तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खास करके ब्रेक्सिट के बाद से. ब्रेक्सिट, एज यू ऑल नो, और फॉर दोज हु डोंट नो, ब्रेक्सिट इज द रेफरेंडम जिसके बाद यूके यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है. तो यूरोपियन यूनियन के से अलग होने की वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है टू ग्रैब इन यूके, क्योंकि वो जो सेटलमेंट की तरफ यूके में देख रहे हैं, करियर बनाने की तरफ, सेटलमेंट की तरफ, उनके लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी है ये इस वक्त यूके में. Well, I'm going to brief you about Cardiff University, the courses they are being offered in Cardiff University, the details about the Cardiff University, the prestige about the Cardiff University, and the scholarship facilities are being offered by them. So that those students who are looking towards to get admission in high rank university, they will have useful information with them, so that if they decide to go into Cardiff, we are here to help you. The details by which you can apply from through us will be shared to you later on in this post. Cardiff University. Cardiff University is located in the city of Cardiff, which is the capital of Wales. वेल्स का कैपिटल है. बड़े इंग्लिश सिटीज़ जो हैं उनसे बहुत करीबी डिस्टेंस पर. फॉर एग्जांपल ब्रिस्टल है, ब्रिस्टल सिटी 27 माइल्स की डिस्टेंस पर है ब्रिस्टल से. बर्मिंघम बड़ा पॉपुलर सिटी है, 86 माइल्स है बर्मिंघम से, और 95 माइल्स है कोवेंट्री सिटी से. कार्डिफ चूँकि वेल्स का कैपिटल है, इस वजह से जो स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है फॉर टाइम वर्क, फॉर इफ दे आर लुकिंग टुवर्ड्स प्रोफेशनल जॉब्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिग्री. क्योंकि वो कैपिटल है तो इंडस्ट्रियल लिंक सारे कार्डिफ, वेल्स के कार्डिफ में मौजूद होते हैं. अच्छा, लेट मी टेल यू अबाउट द प्रेस्टीज, द डिटेल्स अबाउट द कार्डिफ यूनिवर्सिटी नाउ. Cardiff is a Russell Group university. Those of you about Russell Group, let me tell you, the Russell Group is a group of elite 24 research-oriented universities of UK. जो UK की top 24 research
ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका एक ग्रुप है। और इनकी जो रिसर्च होती है पूरी दुनिया में एक्नॉलेज की जाती है रसल ग्रुप की। इनके पेटेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं जिस पे काम हुआ है, और जिसकी वजह से इस वक्त डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडीज़ में काफ़ी एडवांसमेंट हुई है। तो वो स्टूडेंट भी जो रिसर्च की तरफ अपना करियर बनाना चाहते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स या उसकी तरफ इंटरेस्टेड हैं, तो वो भी कार्डिफ यूनिवर्सिटी उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, इसके साथ साथ रसल ग्रुप का पार्ट होने के साथ साथ कार्डिफ पायलट स्कीम यूनिवर्सिटीज है। लेट मी टेल यू, देयर आर ओनली 27 यूनिवर्सिटीज इन द यूके व्हिच आर ऑन द पायलट स्कीम। पायलट स्कीम क्या है? पायलट स्कीम है कि जी वो स्टूडेंट्स जो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं उन यूनिवर्सिटीज में जो पायलट उस पर नहीं है स्कीम पर, उनको 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा वीजा दिया जाता है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो पायलट स्कीम की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जैसे कि कार्डिफ हो गई, उनको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडीज 6 मंथ्स का वीजा ग्रांट किया जाता है। दूसरी पायलट स्कीम यूनिवर्सिटीज की खास बात यह है कि इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती एट द टाइम ऑफ वीजा एप्लीकेशन। लेकिन we always recommend our students to to ready their documents at the time of the application, क्योंकि वो किसी भी टाइम मांगे जा सकते हैं एम्बेसी साहब के। आप डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, बट यू हैव द फैसिलिटी बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ अ पायलट स्कीम यूनिवर्सिटी कि आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने होते जैसे कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को करने होते हैं, लेकिन आपके पास रेडी होना चाहिए। thirdly ये कि पायलट स्कीम यूनिवर्सिटी का वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम बहुत क्विक होता है। नॉर्मली 5 to 7 वर्किंग डेज में उनके वीज़ा प्रोसेस हो जाते हैं, डिसीजन आ जाते हैं। अच्छा, अब हम कार्डिफ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पे बात कर लेते हैं थोड़ा। कार्डिफ यूनिवर्सिटी इज 26th रैंक यूनिवर्सिटी इन द यूके अकॉर्डिंग टू कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड, और क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स में ये 154th पर रैंक करती है। you can have an idea about the university prestige. It is among the top 150 universities of the world. अच्छा जी, सबसे ज्यादा इंकरेजिंग पॉइंट जो कार्डिफ यूनिवर्सिटी का हो सकता है, लेट मी टेल यू अबाउट दैट, कि उनका ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट, यानी कि वो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री विद इन 6 मंथ्स ग्रेजुएट जॉब पे चले जाते हैं या फर्दर स्टडीज पे चले जाते हैं। कार्डिफ यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट 95.7% है। अच्छा, ये यूके का एवरेज एम्प्लॉयबिलिटी रेट जो 94.6% है उससे भी एक 1.1% ज़्यादा है। और यूनिवर्सिटीज़ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड का 93.4 और कैम्ब्रिज का 93.1 है, उनसे भी ज़्यादा इसका ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट है। तो यू गाइस कैन हैव आइडिया के आफ्टर ग्रेजुएशन क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास हो सकती हैं बीइंग अ कार्डिफ ग्रेजुएट। कार्डिफ स्टूडेंट यूनियन थर्ड बेस्ट स्टूडेंट यूनियन है यूके में। रिसर्च रैंक यूनिवर्सिटीज होने के नाते दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ अमाउंट इन देयर यूनिवर्सिटी, इन देयर रिसर्च, इन देयर फैसिलिटीज, स्टेट ऑफ द आर्ट इनके पास फैसिलिटीज हैं, जिसमें इनके पास लाइब्रेरी आ जाती है, मॉडर्न लाइब्रेरी, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी, इनके पास लैब्स आ रही हैं, अकोमोडेशन इनके पास बहुत अच्छी है, विद इन वॉकिंग डिस्टेंस पर अकोमोडेशन में फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तो स्टूडेंट फील कंफर्टेबल, फील सेफ विद इन द कैंपस और विद इन द अकोमोडेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। कार्डिफ ने डिसाइड किया है कि दे विल इन्वेस्ट 600 मिलियन पाउंड्स इन देयर फ्यूचर, जिसमें से 50 मिलियन पाउंड्स उन्होंने मुख्तहिस कर दिए हैं अपने एक स्टूडेंट सेंटर के लिए, स्टूडेंट वेलफेयर सेंटर के लिए, जिसमें एक लेक्चर रूम भी बना रहे हैं, लेक्चर थिएटर भी बना रहे हैं, वो अराउंड 550 सीट्स की कैपेसिटी का। So they have invested a lot, they are investing a lot, and they will invest a lot. As I said, they have decided to invest 600 millions in their future. Now, let me discuss about the courses being offered by Cardiff University. Cardiff University, offer the variety of programs in undergraduate and postgraduate, either in postgraduate thought or postgraduate research. So, you can't, discuss all the 500 courses, more than 500 courses they offer in undergraduate and
postgraduate level. But we will discuss the popular courses, popular courses among Pakistani students which are being offered by Cardiff University. So let me start with the engineering and computer science courses and architectural courses as well from the Cardiff University. क्योंकि कार्डिफ यूनिवर्सिटी का आर्किटेक्चरल, सिविल एंड एनवायरमेंटल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनके बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे. जबकि मेडिकल इंजीनियरिंग जो कि आई डोंट नो कि यू विल फाइंड इट इन मोस्ट, आई डोंट थिंक कि आप उसको बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इनके पास मेडिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट लेवल पर है. इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिविल एनवायरमेंटल, स्ट्रक्चरल, वाटर इंजीनियरिंग, एडवांस मैकेनिकल इंजीनियरिंग. अच्छा, एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम जो कि की तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स से ग्रेजुएट है उनके लिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है. और इसके साथ सस्टेनेबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, बिल्डिंग एंड इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, BIS, जो सिविल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हैं वो इस प्रोग्राम को समझते हैं. बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है, ये ऑफर कर रही है कार्डिफ यूनिवर्सिटी. अच्छा, इसके साथ साथ ये एक ऑफर करते हैं प्रोग्राम जिसमें रिसर्च का ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी कि 1 साल आप प्रोग्राम करें, 1 साल आपको रिसर्च करवाती है कार्डिफ यूनिवर्सिटी विद देयर स्कॉलर्स. प्रोग्राम का नेम है MSc Wireless and Microwave Communication Engineering with air and research. So you have good opportunity those who are looking towards radio communication, and particularly those who are interested in doing research towards radio communication or mobile communication. It's a very good program for them. Let me tell you about the fees of their engineering programs. उनकी फीसेस सबकी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की 21,950 पाउंड, 21,950 पाउंड है. अच्छा, लेट मी टेल यू अबाउट देयर रिक्वायरमेंट्स. जो वो रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर करते हैं यूके में, ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे यूके में ओवरऑल रिक्वायरमेंट जो होती है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन की, वो A लेवल्स होती है. और A लेवल्स में भी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो A's यूजुअली मांग रही होती हैं, या A and B का कॉम्बिनेशन मांग रही होती है. For intermediate students, I will give you detail later on in my कि जो वो स्टूडेंट्स हैं जो इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके पास उनके लिए फाउंडेशन का ऑप्शन होता है. दे कैन ऑलवेज प्रोग्रेस इनटू द सेकेंड ईयर ऑफ द डिग्री प्रोग्राम, सॉरी फर्स्ट ईयर ऑफ द डिग्री बैचलर आफ्टर देयर फाउंडेशन. ओके, तो जो कार्डिफ यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग में बैचलर्स में रिक्वायर करती है वो यूजुअली स्ट्रेट A's करती है, लेकिन वो AA B पे भी आपको कंसिडर कर सकते हैं, और कुछ कोर्सेज में ABB के कॉम्बिनेशन पे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. जबकि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में इनको यूजुअली 2.7 और अबव CGPA रिक्वायर होती है. फीसेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 21,950 पाउंड है इनकी. फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इट इज़ पर ईयर फी, एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यूके के होते ही 1 ईयर के हैं, वो इनकी फीस 21,950 पाउंड है. अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कार्डिफ बिजनेस स्कूल को. कार्डिफ बिजनेस स्कूल एक बहुत इनका प्रेस्टीज बिजनेस स्कूल है, यूके का ओवरऑल प्रेस्टीज बिजनेस स्कूल है. इनके अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के, बिजनेस एंड मैनेजमेंट के और इकोनॉमिक्स के कोर्सेज जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे लोग ऑफर करते हैं, बहुत अच्छे इनके प्रोग्राम्स हैं. AA B रिक्वायर कर रहे होते हैं यूजुअली, ABB पे भी आप कंसिडर कर सकते हैं. फीसिस 18,450 पाउंड है. इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट में आए तो इनका एक प्रोग्राम है मास्टर्स इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट विद द वर्क प्लेसमेंट. बिजनेस एंड मैनेजमेंट के साथ वर्क प्लेसमेंट आई डोंट थिंक कि यूके की मैक्सिमम 1 या 2 यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, जिसमें से कार्डिफ एक है. और ये कन्वर्जन प्रोग्राम भी है. फॉर एग्जांपल, मतलब किसी दूसरे फील्ड के ग्रेजुएट्स हैं, वो इस प्रोग्राम को कर अपना करियर बिजनेस एंड मैनेजमेंट की तरफ इस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो बिजनेस एंड मैनेजमेंट का प्रोग्राम इनका बहुत अच्छा है. उसके बाद आ जाएं तो इनका MBA बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. एक MBA इनका नॉर्मल MBA और एक है MBA विद मीडिया. MBA with media it is for the media students mostly, but if anyone is interested towards doing the media program, they can always go into that program. सही है जी. So but MBA की फीस मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, it is 28,450 pounds. लेकिन इसके साथ साथ 3 CGPA वो रिक्वायर कर रहे हैं, लेकिन एक स्टूडेंट जो अच्छा मेरिट जिसकी बहुत अच्छी है CGPA
अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, उसको ये अप टू 10,000 पाउंड की स्कॉलरशिप एमबीए में दे सकते हैं। और इस 10,000 पाउंड एमबीए की स्कॉलरशिप के अलावा जो इनके बाकी प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो किसी भी फैकल्टी के हों, बिजनेस के हों या इंजीनियरिंग के हों, उसमें ऑब्वियसली आई मीन प्रोग्राम की चॉइस है। वो हमारे पास एक आई मीन वी नो द लिस्ट कि किस किस प्रोग्राम में वो लोग 5,000 पाउंड की स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। तो आई मीन फॉर दोज ऑफ यू आर हु हैव गुड सीजीपीए और ग्रेड्स इन ए लेवल, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको बताएंगे कि उनको किस प्रोग्राम में कितनी स्कॉलरशिप अवार्ड हो सकती है। तो दे हैव स्कॉलरशिप ऑफ अप टू 5,000 पाउंड इन most of the programs, and for MBA they have a scholarship of around 28,000 pound, sorry, 28,450 pound is the fee and 10,000 pound is the scholarship. कार्डिफ के अगर हम कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स को डिस्कस करें तो आई मीन दे हैव रियली गुड कोर्सेज इन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एज वेल। पोस्ट ग्रेजुएट में इनका जो एमएससी, अच्छा एमएससी डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स का प्रोग्राम इनका वो है जो ये बैचलर लेवल पे भी ऑफर कर रहे हैं और मास्टर्स लेवल पे भी ऑफर कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एडवांस कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम इनके पास प्लेसमेंट के साथ अवेलेबल है, और एमएससी कंप्यूटिंग का प्रोग्राम भी प्लेसमेंट के साथ अवेलेबल है। एडवांस कंप्यूटर साइंस कंप्यूटिंग, और एक है इनका एमएससी कंप्यूटिंग एंड आईटी मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी। ये कन्वर्जन कोर्सेज हैं, मतलब कि किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी का स्टूडेंट आ रहा हो, ऑब्वियसली जो इंटरेस्टेड होगा इसकी तरफ, जिसको थोड़ी बहुत नो हाउ होगी, वो इस डिग्री की तरफ जा सकता है इजीली। कार्डिफ यूनिवर्सिटी हैज नो प्रॉब्लम इन रिक्रूटिंग देम फॉर दिस प्रोग्राम। इन प्रोग्राम्स की फीस जो इनकी कंप्यूटर साइंस की है, इसकी तकरीबन फीस 22,950 पाउंड्स हैं। इसके अलावा एक जर्नलिज्म वाले स्टूडेंट्स के लिए इनके पास एक प्रोग्राम है एमएससी कंप्यूटेशनल एंड डेटा जर्नलिज्म, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम इनका बहुत अच्छा है। दोनों कन्वर्जन कोर्सेज हैं। अगेन जो दूसरी फील्ड ऑफ स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें जा सकते हैं इजीली। अच्छा, कार्डिफ हैज आई मीन is really proud of having their MBBS, which is called MBBCH course in Cardiff, और BDS भी करवा रहे होते हैं। They are really proud of their courses क्योंकि उन प्रेस्टीज बहुत अच्छी है उन कोर्सेज के हवाले से। MBBCH और BDS दोनों 5 years प्रोग्राम होते हैं। They require straight A's in A levels, including chemistry and biology. केमिस्ट्री और बायोलॉजी में A levels में A ग्रेड उनको चाहिए। उसके अलावा थर्ड सब्जेक्ट जो कि यूजुअली फिजिक्स होता है या कोई और, उसमें भी A ग्रेड इनको रिक्वायर होता है। इनकी BDS की फी जो पर ईयर है वो 21,950 पाउंड है, जबकि MBBS की फी इनकी पर ईयर is around 34,450 pounds. Let me discuss straight with you about the Cardiff University MBBCH program. 2017 में 100% of their MBBCH student has gone on to employment or the residency, जिसको हाउस जॉब कहा जाता है, उस पर इजीली चले गए। और वैसे यूजुअली इनका अबव 96% रेट है कि इनके ग्रेजुएट 6 months ऑफ कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडीज एम्प्लॉयमेंट पे चले जाते हैं। इसी तरह ये लोग अपने मास्टर्स जो क्लिनिकल मास्टर्स ऑफर कर रहे हैं डेंटिस्ट्री साइड पे, उसमें मास्टर ऑफ क्लिनिकल डेंटिस्ट्री प्रोथोडोंटिक्स और मास्टर ऑफ क्लिनिकल डेंटिस्ट्री एंडोडोंटोलॉजी ऑफर करते हैं, जो कि 3 years प्रोग्राम है, और उसमें उनको 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है। 46,200 पाउंड फीस है। इसी तरह मेडिकल साइड पे एमएससी क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी जो कि 1 year प्रोग्राम है, वो ऑफर करते हैं, और उसके लिए उनको 3 साल का एक्सपीरियंस उसके लिए भी रिक्वायर है। हेल्थ केयर साइंसेस की तरफ आ जाएं, फॉर एग्जांपल हमारे डीपीटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स थेरेपी, एक्सरसाइज, जो इस तरफ फिजियोथेरेपी तरफ देख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं। 1.5 साल के प्रोग्राम्स हैं, एमएससी फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी, और टोटल 1.5 साल की उनकी फीस 21,950 पाउंड है, विच इज़ रियली गुड। स्कूल ऑफ लॉ की तरफ आए तो हमारे पास कार्डिफ का LLB बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बैचलर लेवल पे फीस बड़ी इनकी बहुत अच्छी है, 17,450, और अगर कोई स्टूडेंट अच्छी ग्रेड के साथ आ रहा है तो 5,000 पाउंड की स्कॉलरशिप है।
तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कम फीस कार्डिफ की हो सकती है लॉ की तरफ इसमें। इसके अलावा ये लोग मास्टर्स लेवल पे एलएलएम ऑफर करते हैं। इनके प्रोफेशनल कोर्सेज में लीगल प्रैक्टिस कोर्स, वो स्टूडेंट जो सॉलिसिटर बनने की तरफ देख रहे हैं, एंड फॉर दोज स्टूडेंट हु आर लुकिंग टुवर्ड्स बिकम अ बैरिस्टर, बार ट्रेनिंग कोर्स भी ऑफर करते हैं। उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली 7.5 की चाइल्ड में चाहिए होता है, बी कैट का उनको स्कोर लेना होता है, एक सर्टेन स्कोर अचीव करना होता है। उसके अलावा उनके पास इंस की मेंबरशिप रिक्वायर होती है, इंटरव्यू की उनके पास कंडीशन होती है। तो वो जो काफ़ी डिटर्मिन स्टूडेंट्स होते हैं लॉ के, जो कि बैरिस्टर बनने की तरफ या सॉलिसिटर बनने की तरफ देख रहे हैं, वो इसको इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं। इनकी लीगल प्रैक्टिस कोर्स की फीस 18,200 पाउंड है, और बार ट्रेनिंग कोर्स बैरिस्टर बनने के लिए जो बार ट्रेनिंग कोर्स उनका होता है, उसकी फीस 17,450 पाउंड है, एंड स्कॉलरशिप्स आर स्टिल अवेलेबल फॉर दिस प्रोग्राम। इसके अलावा इनके पास आर्किटेक्चर के बैचलर्स में बीएससी आर्किटेक्चर जो कि 5 इयर्स प्रोग्राम है, वो बड़ा अच्छा इनके पास अवेलेबल है। मास्टर्स की तरफ देखते हैं तो मास्टर्स में एमए आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के पास 1 ईयर प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जो कि दोनों बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं, और इनकी फीस 21,950 पाउंड है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको, जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली एलिजिबल नहीं होते बैचलर्स में एंट्री के लिए कार्डिफ यूनिवर्सिटी में। उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए ऑप्शन ये है कि जी वो 1 ईयर फाउंडेशन करते हैं। कार्डिफ कार्डिफ का अपना एक कॉलेज है जिसको कार्डिफ इंटरनेशनल स्टडी सेंटर कहते हैं। उसमें ये आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंसेज, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, हेल्थ, मेडिकल एंड लाइफ साइंसेज, इन सारी फील्ड ऑफ स्टडीज़ में ये लोग फाउंडेशन 1 साल का ऑफर करते हैं, जिसकी फीस तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कुछ प्रोग्राम्स की जो कि आर्ट्स की तरफ के प्रोग्राम्स हैं उनकी फीस 17,500 पाउंड है, जो बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं उनकी फीस 18,500 पाउंड है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें भी उनके पास अप टू 3,000 पाउंड की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। लेकिन इसमें वो मांग रहे होते हैं 60% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। आपका एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए इन इंटरमीडिएट टू क्वालिफाई फॉर दिस प्रोग्राम्स। इसके अलावा अगर हम देखें फॉर दूज स्टूडेंट जो मास्टर्स की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे होते डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल दूज स्टूडेंट हु हैव सीजीपीए ऑफ लेस देन 2.6 और 2.5, वो ऑब्वियसली डायरेक्ट मास्टर्स में नहीं कार्डिफ में एनरोल हो सकता है, एडमिशन नहीं ले सकते। उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल होता है ग्रेजुएट डिप्लोमा का। ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्डिफ का अगेन इंटरनेशनल स्टडी सेंटर ऑफर कर रहा होता है, जो कि ह्यूमैनिटीज़ और साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स, बिजनेस एंड सोशल साइंसेज के प्रोग्राम्स में ऑफर कर रहे होते हैं, और इनके ग्रेजुएट डिप्लोमा की फीस है 15,500 पाउंड। उस पर भी कुछ 2,000 पाउंड तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। वो ये प्रोग्राम करके स्टूडेंट्स फिर मास्टर्स के लिए इनरोल हो सकते हैं, मास्टर्स अपना कर सकते हैं। इसी तरह जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, they can study their foundation and then they can easily progress into the first year of the degree program, bachelor's degree program. So these are the details available about the Cardiff University, about the courses of the Cardiff University, about the ranking, about the prestige of the Cardiff University. So I mean, I would recommend each and every student of you, I mean, who are interested towards getting a degree from a good rank university of UK, like Cardiff University, जो कि रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी भी है, पायलट की यूनिवर्सिटी भी है। अगर वो इस तरफ अपना एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो काइंडली कॉन्टैक्ट अस फॉर द एडमिशन। वी विल गेट योर एडमिशन विद इन होपफुली 1 day। वी विल फाइल योर एडमिशन एंड इंशाल्लाह ताला जल्दी आपका एडमिशन हम सिक्योर भी कर लेंगे। डिटेल्स आपको आपकी हमारे यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में हमारी टीम काम कर रही है, वो दे रही है। फॉर एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी or other universities of UK, I mean, contact my number, which is 03225757 which is on WhatsApp as well. You can either contact me on WhatsApp or on call, and you can send me your academic documents from matric onwards along with passport copy if available to my WhatsApp number, and I'll arrange your admission
as quickly as possible I will apply for it. इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी, दोनों मेरे नंबर और ईमेल आईडी आपको शेयर किए जाएंगे कमेंट बॉक्स में, और कर भी दिए गए हैं. मेरी email ID, those of you who are trying, who want to note this, it's umairj@hrpakistan.com. So, guys, this is all about today's session. I hope and I believe, I mean, it will be really useful for you. For further inquiries and details about this university and about other universities of UK as well, please feel free to contact on the given number, and please share your documents if you are interested for the admission. Um, in this particular situation which we are in now, I mean, I would like to reassure you that we are working our full time remotely from our homes, just for you, just to give you each and every support which is required by you. Please don't feel, I mean, down, low, don't feel low. Just take care of yourself, take care of your family, spend time with them, uh, spend a quality time with them. And I hope to see you guys very soon, inshallah, in the next video. Thank you. Allah Hafiz.